morning to all of you. I am Anush Tomar and welcome to English Toppers Academy. As you know that we are continuing with the chapter verb. We had already discussed the classification of verbs, kinds, different uses, and we had also given various examples of verbs. Now in today's class we will discuss the various examples of modal auxiliary. Apart from it, we will discuss the keywords of modal auxiliary and we will thoroughly discuss this chapter in today's class. So let's start the class, and before I start the class I would like to thank you everyone for appreciation which you have given to me. Thank you. Can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to. So one by one we will discuss these keywords, and after that we will have some examples related to these keywords. As you know that can is used in present, whereas could is used in the past. In the same way, may is used in present and might is used in the past. Shall is used for future and should is used while we change any sentence into direct, indirect to direct. And apart from it, we use will in the future and would is the past form of will. Must is used for compulsion, whereas ought to is used for moral duties, moral values. So we will see the different uses of can and could first of all, then we will discuss the other keywords later. So as you know that can is used to show power. The key points are written. When we have to show power, we use can. When we have to show ability and capacity, able to take permission, we use the keyword can. So let's start with examples. So first of all, if anyone is able to perform any duty or any activity or any matter, we use can. For example, he can manage this matter. He can manage this matter. Means he has the power to manage this matter. Okay? He has the power to manage this matter. Number 2. Ability and capacity. There is a great difference as far as these two words are concerned. Ability is mental and capacity is physical. So, for example, if anyone is able to solve any sum, ठीक है, मैथ का अगर सम कोई सॉल्व कर लेता है तो एबिलिटी में आएगा, लेकिन अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर दौड़ सकता है तो वो किसमें आएगा? वो कैपेसिटी में आएगा. तो पहले एबिलिटी वाला देखते हैं. गीता कैन सॉल्व द सम. तो यहां पे ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया एबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट देख रहे हैं थर्ड वन. थर्ड में है देखिए कैपेसिटी. तो हमने अभी डिस्कस किया कि फिजिकली होता है, मतलब अगर कोई मेहनत करता है फिजिकली तो वहां पे इसका यूज होता है. जैसे रिया कैन रन 10 किलोमीटर्स. ठीक है, रिया कैन रन 10 किलोमीटर्स. तो ये आपका क्या हो गया? कैपेसिटी. ये आपका कैपेसिटी में आ जाएगा. एबल टू देख लेते हैं. फोर्थ, एबल टू मतलब बहुत सारी जगह कैन का यूज एबल टू के इक्वल होता है. फिर अभी एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं. जैसे देखिए
शी कैन कुक द फूड वेरी वेल। तो यहां पे अगर हम इसको चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एबल टू के रूप में, एबल टू के रूप में इसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखते हैं, यहां पे जो कैन है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इज एबल टू। कैन को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, शी इज एबल टू कुक द फूड वेरी वेल। देयर इज नो प्रॉब्लम, द मीनिंग इज सेम, बट देयर इज द ओनली डिफरेंस ऑफ यूज कि हमें यहाँ पे कैन का यूज करना ही है क्योंकि हम मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे एग्जांपल्स को भी में कैन को अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, परमिशन के लिए। तो परमिशन तो बहुत ही कॉमन है क्योंकि हम लोग बचपन से ही इसका यूज करते आए हैं। तो इसमें हो जाएगा कैन आई सिट हियर। तो ये आपका किसमें हो गया, ये हो गया आपका परमिशन के लिए, यानी कि आपने परमिशन आपको लेना है किसी से तो हो जाएगा और यहां पे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए कैन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखते हैं कुड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। जैसे देखिए पहला एग्जांपल है पास्ट ऑफ कैन। तो पहला तो देख लेते हैं पास्ट ऑफ कैन कैसे होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हमारा शैल आता है तो शुड हो जाता है नहीं, अगर विल आता है तो वुड हो जाता है। तो ऐसे ही जब कैन आता है तो वो कुड हो जाता है। तो देखिए ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, आई कैन eat the food। इसी का बना लेते हैं, he said that he could eat the food। तो यहां पे इसको अंडरलाइन हम कर लेते हैं। तो यहां पे कुड का इस्तेमाल हो गया पास्ट के रूप में। किसके रूप में हो गया, पास्ट, पास्ट ऑफ कैन, पास्ट ऑफ कैन के रूप में हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड तो वही टू शो पावर, तो वो तो सेम वही हो जाएगा। तो यहां पे हम बिल्कुल इसको पास्ट में ही कर लेते हैं। जैसे ही कैन मैनेज दिस मैटर, तो क्या हो जाएगा, ही कुड मैनेज दिस मैटर। तो ये आपका किस पे हो गया, ये हो गया पावर के रूप में। यहां पे लिख लेते हैं पावर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे हो गया, ये आपका अंडरलाइन कर देते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड में क्या हो जाएगा, एबिलिटी। तो सेम वी हैव द सेम पैटर्न कि यहां पे भी जैसे एबिलिटी का हुआ था वैसे ही यहां पे हो जाएगा। ये पास में होगा वो, तो इसमें देख लेते हैं। जैसे गीता कैन सॉल्व द सम, तो इसमें क्या हो जाएगा, गीता कुड सॉल्व द सम। बस ये आपका हो गया। तो यहां पे पास्ट में हो गया, मतलब डिफरेंस यही है। ये आपका क्या हो गया, एबिलिटी, एबिलिटी पास्ट में हो गया, मतलब एबिलिटी का यूज पास्ट में किस तरह होता है। 4 में देखते हैं, फिर क्या है, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में बिल्कुल वही है, रिया कुड रन 10 किलोमीटर्स। तो ये आपका किसमें हो गया, ये आपका कैपेसिटी में हो गया।
फिर उसके बाद देखते हैं 5। 5 में क्या है, एबल टू, बिल्कुल सेम यूज है, पास्ट में हो जाएगा। जैसे देखते हैं, शी कैन कुक द फूड वेरी वेल, तो शी कुड हो जाएगा, शी कुड कुक द फूड वेरी वेल। तो यहां पे जो कुड है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहां पे, शी वॉज एबल टू, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कुड को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे, ठीक है, किससे, वॉज एबल टू से। और एक और एग्जांपल आपका बच गया, वो है 6 नंबर का, परमिशन वाला। तो बिल्कुल वैसे ही है, कैन आई सिट हियर, तो कुड आई सिट देयर कर लीजिए, चाहे हेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या देयर कर लीजिए ज्यादा बेहतर है। कुड आई सिट देयर, और क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया परमिशन। तो इस तरह से बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे कैन कुड हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे मे और माइट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड वी विल डिस्कस मे एंड माइट and other keywords in the next video. Have a great day. Thank you.